آزاد کشمیر میں مقیم کشمیریوں کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا شکار بھائیوں سے ساری یکجہتی وادی میں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی وزیر اعظم مودی کے دورے کے خلاف مظفر آباد میں پاسبان حریت کے کارکنوں نے دھرنا دیا۔ بھیمبر اور راولہ کوٹ میں مودی کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں۔ کوٹلی میں شہریوں نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کوہوٹا اور پلندری میں بھی یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ اس پر ڈیٹیلز کیا ہے خرم ذوالفقار سے ہم جانیں گے۔ جی خرم ذوالفقار، اس وقت میں موجود ہوں راولہ کوٹ آزاد کشمیر مین کچہری چوک میں، جیسا کہ آج جو 25 اپریل کو جو ہے جو نریندر مودی ہے اس کا دورہ ہے جموں کشمیر میں، اس حوالے سے پورے پاکستان اور آزاد کشمیر میں جو ہے یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے یہاں پہ بھی ایک تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ یہ ریلی شرکا موجود ہیں۔ یہ ریلی ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے شروع ہوئی، اب یہاں پہ اختتام پذیر ہو رہی ہے، اور جتنے بھی ریلی شرکا ہیں انہوں نے سیاہ جھنڈے اٹھا رکھے ہیں اور مودی مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور ان کا یہی نعرہ ہے کہ انشاءاللہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت مل کے رہے گا۔ جی، بھارتی وزیر اعظم مودی کے دورہ مقبوضہ کشمیر کے خلاف آل پارٹیز حریت کانفرنس کے زیر اہتمام اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرہ جاری ہے۔ مقررین کا کہنا ہے کشمیریوں کا قاتل مودی ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر میں بسا کر مسلمانوں کی آبادی کا تناسب بدلنا چاہتا ہے۔ عالمی برادری اس بربریت کا نوٹس لے۔ ہمارے نمائندے محمد اویس مظاہرین کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی اویس۔ جی بالکل، آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنماؤں کی جانب سے اس وقت بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہوگا جہاں پر جو کشمیری ہیں ان کی آبادی کو کم کرنے کا یہ پلان کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہنما موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کہ اس وقت مودی جب مقبوضہ جموں کشمیر کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے سب سے گناونی جو صورتحال ہے کہ نوجوانوں کا قتل عام مسلسل پچھلے 3 مہینے سے انہوں نے فیک انکاؤنٹرز کے ذریعے ان کو گھر کے اندر سڑکوں پر لا کے قتل کیا، اور اس کی کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے لوگوں کو مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام سے دور رکھنے کے لیے پچھلے 3 دنوں سے تقریباً 1500 کے قریب نوجوانوں کو ہندوستان کے مختلف جیلوں میں بند کیا جائے گا تاکہ ان کو وہ کوئی وہاں پر ایکٹیویٹی نہ کرے۔ مقبوضہ کشمیر اس وقت امن پذیر ہے اور وہاں پر امن ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر جو کشمیری ہیں ان پر ظلم اور بربریت ڈھائے جا رہے ہیں اور ان کی جو آبادی ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے۔ جی، افواج پاکستان کا ملک کے بھرپور دفاع اور ہر قسم کی سازش ناکام بنانے کا عزم۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے واضح کر دیا کہ پاکستان کے خلاف سازش کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز خطرات اور سازشوں کے خلاف کام کر رہی ہیں، سیکیورٹی ادارے کام کر رہے ہیں۔ چوکنا ہے کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ آنکھ نکال دیں گے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے، وہ دن رات اس ایسی تھریٹس اور ایسی کانسپریسیز کے اگینسٹ جو کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں، اور اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس آنکھ کو نکال دیں گے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہمارے ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور چوکنا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیے گئے ہیں۔ نئی پالیسی کے تحت سابق صدر آصف علی زرداری، فریال تالپور، رانا ثناءاللہ، شاہد خاقان عباسی، ان کے بیٹے عبداللہ خاقان، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف سمیت کئی اور اہم نام بھی خارج کر دیے گئے ہیں۔ ECL سے بڑے بڑے نام آؤٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے خارج کر دیے گئے۔ نئی ECL پالیسی کے تحت سابق صدر آصف علی زرداری، فریال تالپور، رانا ثناءاللہ، شاہد خاقان عباسی، ان کے بیٹے عبداللہ خاقان، خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف سمیت کئی اور اہم نام بھی نکال دیے گئے۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق اب تک 100 سے زائد افراد کے نام نکالے گئے۔ مجموعی طور پر 3000 کے قریب نام ECL سے نکالے جانے ہیں۔ وزارت داخلہ میں لسٹوں کی چھانٹی جاری ہے۔ نئی پالیسی کے تحت عدلیہ اور حساس ادارے کی سفارش پر ECL میں ڈالنے والے نام لسٹ میں موجود رہیں گے۔
राना सनाउल्लाह ने राना सनाउल्लाह का नाम ECL से निकाल दिया। जिन्होंने मुल्क को लूटा वो डाकू आज़ाद हो गए। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने वीडियो पैगाम में कहा 150 क्रिमिनल्स के नाम ECL से निकाल दिए गए। ये तमाम लोग नैब और FIA को मतलूब थे। अरबों रुपए लूटने वालों के नाम ECL से निकाले गए। पाकिस्तानियों वो लिस्ट देखो किस किस को निकाल रहे हैं। क्या खबर है, राना सनाउल्लाह ने राना सनाउल्लाह का नाम एग्जिट ECL से निकाल दिया। जिन्होंने 30-35 साल से मुल्क को लूटा खाया सब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से बाहर निकल गए। ये डाकू आज़ाद हो गए। 150 लोग, 150 क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड पाकिस्तान के। जितने क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड थे नैब और FIA को, जिन्होंने अरबों रुपए के डाके डाले थे मुल्क में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। कौमी अमूर समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज के हल्फ में ताख़ीर से मुताल्लिक़ तफसीलात लेंगे। इस हवाले से अदालत आलिया से रजू करने का भी जायज़ा लिया जाएगा। इमरान खान अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाते हैं और फिर पूछते हैं कि रात को अदालतें क्यों खुलें। इमरान साहब फिस्तायत और आइन शिकनी छोड़ें, पार्लियामेंट के अगवाकार ना बने। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब के साबिक़ वज़ीर आज़म पर शदीद लफ्ज़ी वार। बयान में कहा इमरान खान का सदर पंजाब में आइन शिकनी कर रहा है। पूरी PTI बीमार पड़ जाए तब भी हमजा शहबाज वज़ारत आला का हल्फ ज़रूर लेंगे। इमरान खान, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब समेत आइन शिकन टोले को आर्टिकल 6 की सजा मिलनी चाहिए। मकरूज पाकिस्तान के बाशिंदे 5 बरस में 265 अरब सिगरेट पी गए हैं। सिगरेट पीने वालों ने दरामदी बिल में भी अरबों रुपए का इजाफा किया है और अपनी सेहत के साथ जेब का भी नुकसान किया है। किस बरस में पाकिस्तानियों ने कितने सिगरेट्स पिए हैं, तफसीलात जानते हैं। हमारे नुमाइंदे अशरफ मेहताब हमारे साथ हैं। अशरफ मेहताब, किस बरस में पाकिस्तानियों ने कितने सिगरेट्स पिए हैं और रेशो अभी भी किस तरह से जारी है? जी, ये सिलसिला काफ़ी अर्सा से जारी है और अभी भी इसी तरह है। ये 5 साल में 265 अरब सिगरेट पी गए हैं और अगर कौमी खजाने पे बात करें जो इम्पोर्टेड हुए सिगरेट वो तकरीबन कोई 1855 अरब रुपये बनता है और ये तजारती सारे में भी इसका हिस्सा है। तो इस तरह देखा है 2017 में 46 अरब सिगरेट पिए गए, 2018 में 61 अरब और ये सबसे ज़्यादा थे अब 5 साल के दौरान। 2019 में 51 अरब और इसी तरह से 2020 में 46 अरब और 2021 की बात करें तो 57 अरब सिगरेट पी गए हैं। और ये अगर इसकी एवरेज लगाई जाए तो 30 पे का भी सिगरेट मिलता है और इसके अलावा 10 का भी है, 2 का भी, 4 और इस तरह से मुख्तलिफ रेट्स है। तो इसकी एवरेज अगर लगाई जाए 10 पे की सिगरेट तो ये कोई 1855 अरब रुपए बनते हैं। और अगर इसकी बात की जाए 2017 की तो ये रोजाना जो है 12 करोड़ और 60 लाख सिगरेट पिए गए। इसी तरह से 2018 की बात करें तो 16 करोड़ 71 लाख रोजाना सिगरेट पिए गए। और इतनी ये इस तरह से अगर ये हिसाब लगाया जाए तो हम फजूल खर्ची पे बहुत आगे हैं। ये जेब पे भी नुकसान है इसका और कौमी खजाने पे। हम फजूल खर्ची में बहुत आगे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मेहताब। आप लोड शेडिंग से भी अवाम परेशान है। कई घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ना कोई काम हो पा रहा है ना ही आराम। बस बिजली का इंतजार रहता है कि कब बिजली आएगी और काम करें। आ रहा है तो इस वजह से मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे कारोबार में भी बहुत मसला हो रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि जो है ना लोड शेडिंग का कुछ करें। बिल भी पे करते हैं, सारा कुछ है, इसके अलावा भी इतना मसला है। रात को इधर अंधेरे में बैठे होते हैं, रात का ही काम होता है हमारा और दुकानदारी का मसला है। लोड शेडिंग का बहुत परेशानी हुई। लाइट नहीं आ रही, ना शहरी के टाइम आती है ना अफ्तारी के टाइम लाइट आती है। हम बहुत तंग हैं। ऐसा है कि लोड शेडिंग का तो वाकई बहुत मसला है। घर जाओ या दफ्तर जाओ या जॉब पे तो लाइट है ही। लोड शेडिंग तो गर्मी के मुताबिक बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है लोड शेडिंग भी ज़्यादा हो जा रही है। सारी टाइम गैस बंद हो जाता है, सुबह टाइम लाइट बंद हो जाती है। गर्मियाँ है ने भाजी ते रोज़े रखे होंगे ने तो बहुत परेशानी बनती है। बच्चों ने रोज़े रख के सोना होंगे, घड़ी आराम करना होंगे। ये आंदी है जाती है, अगे लोड शेडिंग नहीं सी होंदी है, हुण दोबारा फिर शुरू। कराची में चंद रोज पहले लापता होने वाली 14 साला दुआ ज़हरा का ताहाल कोई सुराग नहीं लग सका।
बच्ची के वालिदैन का कहना है कि उनको किसी से कोई दुश्मनी नहीं। एंटी वायलेंट क्राइम सेल और दीगर इदारे बच्ची को तलाश करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। तहकीकाती टीमें करीबी इलाकों की CCTV फुटेज और बच्ची के ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन्स की जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। कराची में चंद रोज़ पहले लापता होने वाली 14 साला दुआ ज़हरा का ताहाल कोई सुराग नहीं लग सका है, जबकि बच्ची के वालिदैन कहते हैं कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। एंटी वायलेंट क्राइम सेल और दीगर इदारे बच्ची को तलाश करने की कोशिशों में मसरूफ हैं, जबकि बच्ची के मोबाइल फ़ोन की भी जांच पड़ताल की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की क़यादत में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुज़ाहिरा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने अपने खिताब में कहा है कि मकबूजा कश्मीर में होने वाली मुज़ाहमत से भारत खौफज़दा है। न सिर्फ कश्मीर आज़ाद होगा बल्कि अखंड भारत का ख्वाब भी चकनाचूर होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की क़यादत में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुज़ाहिरा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने अपने खिताब में कहा है कि मकबूजा कश्मीर में होने वाली मुज़ाहमत से भारत खौफज़दा है। न सिर्फ कश्मीर आज़ाद होगा बल्कि अखंड भारत का ख्वाब भी चकनाचूर होगा। दादू की तहसील महड़ में आग से मुतासरा गांव फैज़ मोहम्मद चांडियों के मकीन सरापा एहतजाज हैं। मुतासरीन ने तहसीलदार महड़ अल्लाह बख्श मक्सी की गाड़ी रोक ली। मुश्तइल मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर और मकामी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि डिप्टी कमिश्नर दादू और दीगर इंतजामी अफसरान मुतासरीन की बजाय सिफारिशी और गैर मुतल्लिका अफराद को सर्वे में शामिल कर रहे हैं। आग से मुतासरा 120 घरों की जगह सर्वे लिस्ट में सिर्फ 70 घर शामिल किए जा रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जाते जाते एक बुलेट प्रूफ गाड़ी मंजूर करा के साथ ले गए। 8 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से कैबिनेट डिवीजन को कहा गया कि सिक्योरिटी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी इमरान खान के ज़ेरे इस्तेमाल रहेगी। इस पर 11 अप्रैल से गाड़ी कैबिनेट डिवीजन को दे दी गई, जिसे अब भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नासिमाबाद में साबिक CPLC चीफ मुराद सोनी ने कम्युनिटी पॉलिसिंग की मदद से जदीद कैमरास का जाल बिछा दिया है। उनका कहना है CCTV कैमरों और कम्युनिटी पुलिसिंग की मदद से स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाया जा सकता है। तफसीलात नसीम आदिल की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम पर कैसे काबू पाया जाए। साबिक चीफ CPLC मुराद सोनी कहते हैं, कराची में जुराइम में मुलविस एक मुनज़्ज़िम माफिया मौजूद है। नेबरहुड सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट कम्युनिटी पुलिसिंग के नाम से अदारा कायम किया गया है। पहले मरहले में नातानाबाद के 4 ब्लॉक्स में 102 जदीद कैमरे लगाए गए हैं। 4 मेगापिक्सल के कैमरों में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स और जुराइम पेशा अनासर के चेहरे वाज़ेह हो जाते हैं। 70 के करीब कैमरे थे, आज जो प्लस होके हो गए 102 के करीब कैमरे हमारे लग गए और मजीद हम उसका हमारा जो टारगेट है वो 150 कैमरे पे जाने का है। नेबरहुड सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट कम्युनिटी पुलिसिंग के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर सैफ अंतारिया का कहना है, नातानाबाद के दाखिली व खारजी रास्तों पर स्पीड ब्रेकर बनाकर कैमरे नस्ब किए गए हैं। जिस तरह सेफ सिटी का प्रोग्राम है, हमने वहाँ पर रोड सेफ्टी को भी कैमरे के साथ इंट्रोड्यूस किया है कि स्पीड ब्रेकर्स इंस्टॉल कर दिए। अजीजाबाद, नाजाबाद और शारे नूरजहां पुलिस स्टेशन में मजीद 3 कम्युनिटी सेंटर खुलने जा रहे हैं, जिसकी मदद से स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम में मदद मिल सकेगी। शहर कायद में अगर स्ट्रीट क्राइम को रोकना है तो उसके लिए कम्युनिटी पुलिसिंग का होना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ नसीम आदिल, न्यू न्यूज़, कराची। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स के बाद बचत बाज़ारों में भी फल और सब्जियों की कीमतों में कमी कर दी गई है। शहरी कीमतों से तो मुतमईन हैं, लेकिन अशिया खुर्दनोश का मयार बेहतर बनाने का मुतालिबा कर रहे हैं। बचत बाज़ारों की सूरत हाल मानिया शकील से। जी बिल्कुल, हम जिस तरह से देखते हैं रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जो है वो जारी है और जो है अख्तिताम की तरफ रमज़ान मुबारक बढ़ने लगा है, लेकिन हम देखते हैं कि कीमतों की क्या सूरत हाल है। इस वक्त मैं बचत बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ दुकानों पे रेट लिस्ट भी मौजूद हैं। कीमतें भी कुछ आम बाज़ारों के मुकाबले कम नज़र आती हैं। यहाँ के जो ख़रीदार हैं कराची के शहरी हैं, उनसे भी मालूम करेंगे। नहीं, रिलीज नज़र आ रहा है, मैंने अभी देखा नहीं था इनका जो लिस्ट है प्राइस का। मैंने लिया तो एक शॉप से जो मुझे महंगा मिला, मैंने कहा देख लेती हूँ कि कहीं और भी है मुनासिब या कौन क्या कर रहा है देखूँ। तो देखा कि लिस्ट से मतलब उन्होंने मुझे ज़्यादा ही दिया था, 40 में दिया था ना, 60 का था, 50 में दिया। मैंने जब लिस्ट देखा उसमें 40 था। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि बचत बाज़ार में बचत तो हो रही है, लेकिन लिस्ट देख के सामान लेना ज़रूरी है। जहाँ पे लिस्ट नहीं देखी जा रही वहाँ पे मनमानी भी हो रही है, लेकिन अगर लिस्ट देख के सामान लिया जा रहा है तो कराची वालों को खासा रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है।
सिंध का कदीम किला दलील कोट हुकूमत की अदम तवज्जुही के बाइस खंडर का मंजर पेश कर रहा है। नवाब शाह से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान काशिफ अबड़ू। सिंध के जिला नवाब शाह की तहसील सिकरन का दलील कोट किला महकमा सकाफत की अदम तवज्जुही के बाइस खंडरात में बदल गया है। मुकम्मल तौर पर गोल इस किले के 3 दरवाजे हैं। लोगों ने 2 दरवाजों पर कब्जा करके इन्हें बंद कर दिया है। गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया हुआ है, इस पे गौर भी नहीं दे रहे, इस पे बारिश पे इस पे खड्डे हो गए हैं। बाज मुहक्किकीन का कहना है दलील कोट किला सिंध में राय घराना की हुकूमत में तामीर किया गया। ताहम एक दलील ये भी जाती है कि किला चूँकि मुकम्मल तौर पर गोल है, उसे सूर्या खानदान ने तामीर किया जो सूरज की पूजा करते थे। किले की दीवारें 8 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची हैं। दीवार पर पहरा देने के लिए 5 फीट का रास्ता बनाया गया है। तारीखी किला है, उसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, जैसे ये हमारे हाथों से निकल नहीं जाए। अभी जुबून हालत में पड़ा हुआ है। अगर सिंध हुकूमत इस किले की तज़ीन और आराइश करती है तो इससे न सिर्फ मकामी बल्कि गैर मुल्की सयाहत में भी इजाफा होगा।